हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। इसमें हम करेंगे एवोल्यूशन ऑफ द लैंड फॉर्म ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस, यानी पृथ्वी के आंतरिक बलों के जो है परिणाम स्वरूप भू आकृतियों का जो है विकास किस प्रकार हुआ, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो है कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 9th हो, 8th हो, 10th हो, +1 हो, +2 हो, तो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सभी बोर्डों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर उनके टॉपिक में एवोल्यूशन ऑफ द लैंड फॉर्म ड्यू टू इंटरनल फोर्स है तो ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Here doing to the most important chapter, the evolution of the landform due to the internal force. There is the next topic is arrive here, the earthquake. What do you mean to the earthquake here? You know that is a simple word, the earthquake. You have probably seen to television news account of disaster is the earthquake and destructions causing by them. And the earthquake is the motion of the ground surface ranging from to the faint tremors to be wild motion capable of shaking a building apart. The earthquake is a form of energy for wave motion and transmitted through their surface layer of earth. There is the most important surface here layers of the earth. All the earthquakes are not be same is the intensities. There is the most important. There is not a same is the intensity. Some of them are very sharp and the others very mild, and still other are not even to notice. The major and strong earthquakes are only a few. Through our earth is experience is a many earthquakes every day. However, the frequency of earthquake vary largely from place to place. The network of the seismographics of station all over the world record dozens of earthquakes every day. But occurrence observed to the earthquake is limited to a few regions. The instrumentals used of recording to earthquake is known as the seismographics. There are seismographics is the most important. Seismos is a Greek word which means to the earthquake. The point within the earth is a crust where to the earthquake is originate is called a focus. It is also referred to the semi-mixed focus is generally lies within the depth of the 60 kilometer in the earth crust. The point is vertically above their focus on the earth as a surface is known as the epicenter. That is the most important here. The point of vertically above the focus on the earth as a surface is known as the epicenter. The impact of the earthquake is carried from the point of its origin by earthquake wave. The earthquake wave is originating from to the is a focus travel in all direction, but their intensity is their highest at the epicenter, and that is why to the maximum destruction occur at the around the epicenter. There is a figure in the intensities of vibration decreasing as one move away from to the epicenter in all the direction. Here show the focus and epicenter of the earthquake. There is the earth and the focus crust and earth surface and epicenter. There is the epicenter is the most important here. The epicenter is a shake for the other side of is the earth surface. There are crust and focus only. The most important point here, a earthquake is a motion of ground surface.
the ranging from a tentative to the valid motion and capable of the shaking of buildings apart. And the next here, a seismograph is the instrument used by recording of earthquake. Seismographics is the instrument used for the recording of earthquakes, and focus is a point within the earth as a crust where the earthquakes originate. And the epicenter is a point on the earth's surface is a vertically above the focus. A cases and effect of the earthquake. There is a next important point here, the case and effect of the earthquakes. The faulting and displacement of the rock stair are the main case of the earthquake. Some example of this type of earthquake are San Francisco as the earthquake of California in 1906, and the Assam earthquake is in 1951. The Bihar earthquake is in 1935. That is the most important earthquake in their world. The second important case lies in the phenomenon of volcanic eruption. The violent volcanic eruptions is put even to the solid rock under to great stress. It is a cause of vibration in the earth is crust, but these earthquakes are limited to be the area of volcanic activity. It is an important example is the earthquake which continue for the 6 days of preceding the eruption of the Manas Low is a volcano of the Hawaii Island is 1868. 1868 there is the most important. The minor earthquake is often is a company or the result of landslide. Is a seepage of the water causing their escapes of the earth of the caverns and the underground is a mines and tunnel. There is a list of the damaging of earthquake. The violent earthquakes are generally very distressing and there may be themselves cause a landslide and dammings of the river's course and occurrence of the fault and the sometimes in the depression leading to the formation of the lakes. On the earthquake is often formed to the crack and fissure in the earth as a crash. Is a change the drainage of system on the area as was the witness to the Assam after its 1951. The 1951 earthquake. The earthquake is also the case of vertical and horizontal displacement of rock stirred along the fault line. They prove most are catastrophic and devastating when they cause of fire and the semi-max sea waves. So the tidal waves is called tsunami, and these waves may be a wash away of coastal cities. Buildings and bridge is a collapse as a causing a death of a thousand of people. Line of transport communication of electrical transmission get a drifted there after effect to the earthquake and spread of the epidemic like a cholera. That is the most important. The effect of line transport communication of electric transmission get a is a disrupted and this effect to the earthquake is spread to the epidemic like a cholera. There is the most important here. The next topic is here distributions of the earthquake. Distribution of the earthquake here is the most important topic. The occurrence of earthquake is a phenomenon in almost every part of the world. But there are two well defined it is a belt where they occur more frequently. And this belt are the circums is a Pacific belt and the mid-world is a mountain belt. The first belt is the circums a Pacific is a comprise the western coastal of the there is a North and South America. And Chinese island groups along the eastern and coastal of Asia such as Japan and Philippines. As is the encircles and the Pacific Oceans form into the end. It is named as such. The earthquake is the belt are situated within the ring of mountain and volcanoes. It is estimated that is about 68% of earthquakes of the world occur in this belt along. That is the most important here. The second belt is extend from the Alpha with there is extension as the Mediterranean and the Caucasus and the Himalayan region and continue into Indonesia. About 21% of total earthquake of the world originate in this belt. Demanding to 11% occur in the other part of the world. That is the most important here. The most of the earthquake of the world occur in two belts, namely there is a circum-Pacific and mid-world mountain belt. Here show the major the earthquake belt here. There is the most important region to the India is also in this
major earthquake belt here. There is a most important map in show in this picture. हमारा जो यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है भूकंप। देखिए भूकंप क्या है। भूकंप तो बहुत ही साधारण शब्द है जिसको हर एक व्यक्ति को पता होता है कि भूकंप क्या होती है। यानी आपको पता है घर में हम सोए रहते हैं और अचानक हमारे घर में जितने भी सामान होते हैं वो हिलने लग जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। सारे सामान जो है कांपने लग जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं, हम लोग घर छोड़ के भागने लग जाते हैं। तो ये जनरली जो है आए दिन होता ही रहता है। और ये भी जो है ज्योग्राफी भी यही बात बताती है कि भूकंप की प्रक्रिया जो होती है तीव्र होती है, कम तीव्र होती है और बिल्कुल ही शांत भी होती है। तो भूकंप जो है हमेशा प्लेट की खिसकना जारी रहता है। आपने शायद दूरदर्शन के समाचारों में भूकंप से होने वाले विनाश के विषय में सुना भी होगा और ये बहुत बड़ी विनाशक लीला भी रचती है। भूपृष्ठ के हिलने या कांपने को ही भूकंप कहते हैं। जनरली लैंग्वेज में देखा जाए तो भूपृष्ठ के हिलने या कांपने को ही भूकंप कहते हैं। ये हल्के से कंपन से लेकर भवनों को तेज हिलाकर रख देने वाले होते हैं। यानी काफ़ी हिलाकर रख देने वाले होते हैं। भूकंप और लहरों की गति की जो है ऊर्जा का एक रूप है जो पृथ्वी की धरातलीय परत से जो है संक्षेपित होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सभी भूकंप सामान्य तीव्र वाले नहीं होते हैं। भूकंप जो होते हैं सभी तीव्र वाले नहीं होते हैं। इनमें से कुछ भूकंप बहुत भयंकर भी होते हैं, तो कुछ हल्के होते हैं, तो कुछ शेष, कुछ का पता भी नहीं चलता है। ठीक है, ये भयंकर या अधिक तीव्रता वाले भूकंप गिने चुने होते हैं। यद्यपि हमारी पृथ्वी पर प्रतिदिन भूकंप आते ही रहते हैं, लेकिन उनकी बारंबारता में स्थान स्थान बहुत अंतर पाया जाता है। यानी देखा जाए तो भूकंप का केंद्र जो है सदैव बनी रहती है, लेकिन इनका अलग अलग स्थान पर बहुत ही अंतर पाया जाता है। सारे संसार में फैला भूकंप मापी केंद्र का जाल जो है प्रतिदिन दर्जनों भूकंप के आलेखित करता है। लेकिन भूकंप जो है भयंकर भूकंप कुछ ही क्षेत्रों में आते हैं। भूकंप जो है मापने वाले यंत्र को भूकंप मापी जो है सेमोग्राफ यंत्र कहते हैं। यानी भूकंप मापी यंत्र को हम सेमोग्राफ कहते हैं। और सेमोस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है भूकंप। अब देखिए आंतरिक बलों द्वारा जो है भूपृष्ठ के कंपन को हम भूकंप कहते हैं और भूकंप मापी एक यंत्र है जो भूपृष्ठ के कंपन को आलेखित करता है, जो कि बहुत काफ़ी जरूरी भी है। भूपृष्ठ में स्थित वह बिंदु जहां भूकंप आरंभ होता है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। यानी भूपृष्ठ में स्थित वह बिंदु जहां से भूकंप आरंभ होता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। सामान्यतः यह केंद्र जो है भूपृष्ठ में जो है 60 किलोमीटर गहराई के आसपास स्थित होती है। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के धरातल पर जो स्थान होती है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप का जो है प्रभाव उसके उद्गम बिंदु से तरंगों द्वारा ले जाया जाता है और ये भूकंपीय तरंगे जो होते हैं भूकंप केंद्र से पैदा होकर सभी दिशाओं की ओर चलती है। लेकिन उनकी तीव्रता जो है अधिकेंद्र पर सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि अधिकेंद्र के चारों ओर फैले क्षेत्र पर जो है विनाश सर्वाधिक होता है। कंपन की तीव्रता अधिकेंद्र के चारों ओर दूर जाने पर क्रमशः कम होती चली जाती है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है। इस चित्र में आप साफ समझ सकते हो कि जहाँ अधिकेंद्र बना हुआ है वहाँ से कंपन शुरू होती है और ये भूकंप केंद्र जो है उसके आगे जो है ये चलती ही चली जाती है। यानी भूपट्टी के क्षेत्र में जो है जहाँ जहाँ इसकी कंपन जाएगी वहाँ वहाँ जो है ये विनाश लीला खेलेगा। तो इसी तरह से जो है आप डायग्राम के रूप में दिखा सकते हो कि यह भूकंप या भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र कैसे दर्शाए जाने की जो प्रावधान है। तो ये डायग्राम बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट और विस्तृत है। कहते अगर देखा जाए तो कहते भूकंप पृथ्वी के धरातल का कंपन है जो हल्के से कंपन से लेकर भवनों को तेज हिलाकर रख देने वाले भी हो सकते हैं। कहते भूकंप इतना भयंकर होता है कि शहर के शहर जो है धराशायी हो जाता है। कहते हैं इसका जो है भुज यानी जो है गुजरात में सबसे बड़ा भूकंप आया था, इसका शायद आपको अंदाज़ा हो। कहते भूकंप मापने के लिए जो है भूकंप मापी जो है सिमोग्राफ यंत्र का उपयोग किया जाता है जिससे हम भूकंप मापते हैं। भूकंप केंद्र जो है भूपृष्ठ में वह बिंदु होता है जहां से भूकंप आरंभ होती है। कहते हैं अधिकेंद्र धरातल पर वह बिंदु होता है जो भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर होता है। तो ये सारी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट रखता है। कहते हैं भूकंप के कारण और प्रभाव। देखिए भूकंप के क्या कारण हो सकते हैं और क्या इसका प्रभाव हो सकता है। भूकंप आने का प्रमुख कारण वलयन भ्रष्ट जो है शेल सतरों का खिसकना होता है। कहते हैं कैलिफोर्निया के सामने जो है फ्रांसिस्को में जो 1906 तथा असम में 1951 में तथा बिहार में 1935 में
आए भूकंप इस प्रकार के भूकंपों का उपयुक्त उदाहरण है। तो ये सारे के सारे भूकंप जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो कि काई मानने में जो है बहुत काफ़ी तबाही किया था। भूकंपों के आने का दूसरा प्रमुख कारण जो होता है ज्वालामुखी उद्भेदन। कहते ज्वालामुखी के भयंकर उद्भेदन में ठोस पदार्थों का अधिक दबाव पड़ता है और इसे जो है भूपृष्ठ पर जो है कंपन पैदा करती है, लेकिन इस प्रकार के भूकंप जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया के क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। हवाई द्वीप समूह में जेमनालोस ज्वालामुखी के 1868 में हुए उद्भेदन में जो है पूर्व 6 दिन तक इस क्षेत्र में लगातार आए भूकंप इस प्रकार के भूकंपों का प्रमुख उदाहरण है। कहते हैं हल्के या जो है सीमित प्रभाव वाले भूकंप के आने के कारणों में भूस्खलन, जल के रिसने से भी खानों और सुरंगों और कंदराओं की जो है छतों की सेलों का टूट कर गिरना शामिल होता है। इससे भी भूकंप आती है। आपने देखा होगा कि कोई पहाड़ गिरता है तो उससे भी काफ़ी जो है कंपन हो जाती है और इस प्रकार के भूकंप से क्षति बहुत ही कम होती, क्योंकि ये कुछ ही क्षेत्र में जो ये होते हैं, इसलिए इसका जो है क्षति बहुत ही कम होती है। कहते हैं भयंकर भूकंप सामान्यतः अधिक विनाशकारी होती है और इस प्रकार के भूकंप से जो है भूस्खलन, नदियों के मार्गों का जो है रुक जाना तथा बाढ़ के आने की घटनाएं घटित हो जाती है। कभी कभी जो है भूमि के धंस कर जो है जाने से जो है झीलें बन जाती है और भूकंपों के आने से जो है दरारें पड़ जाती है। इसके कारण नदियों के मार्ग बदल जाते हैं, जैसा कि असम के जो है 1951 में भूकंप के कारण हुआ था। भूकंप के कारण दरारें रेखा के साथ शैल सतह रूप नीचे अथवा क्षैतिज दिशा में खिसक जाते हैं। जब इनसे आग लग जाती है या ज्वारीय तरंगें पैदा होती है तब ये भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होते हैं और इन ज्वारीय तरंगों को जो है सुनामी का नाम भी दिया गया है। इन तरंगों से जो है तटीय नगर बह जाते हैं। भूकंप के आने से मकान व पुल टूट जाते हैं, जिससे हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और यातायात, संचार, बिजली के तार की लाइनें टूट जाती है। और भूकंप का अंतिम परिणाम हैजा जैसी बीमारियों का होता है, जहां लाखों के तादाद में जो है जीव जंतु मर जाते हैं और वहां पर हैजा होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। भूकंपों का वितरण यहाँ पर हमारा आया है। अगला टॉपिक कहते हैं भूकंप संसार के प्रत्येक भाग में आते हैं, जो जनरल सी बात है, लेकिन 2 पुण्य निश्चित पेटियों में अक्सर जो है ये आते रहते हैं। ये पेटियाँ प्रशांत महासागर को घेरने वाले पेटी तथा मध्यवर्ती पर्वतीय पेटी। प्रशांत महासागर को घेरने वाली पेटी में जो है उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, अल्मीशियस तथा एशिया के पूर्वी तट से लगे अन्य द्वीप समूह जैसे जापान तथा फिलीपींस शामिल होते हैं। यह पेटी प्रशांत महासागर के एक छोर से दूसरे छोर तक घेरे हुए हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ गया है। इस पेटी में आने वाले भूकंप पर्वतों तथा ज्वालामुखियों की श्रृंखला से संबंधित है। ऐसा अनुमान है कि संसार के लगभग 68% भूकंप अकेले इसी पेटी में आते हैं, यानी 68% जो है भूकंप जो है इन्हीं पेटियों में देखने को मिला है। जो है भूकंप प्रभावित दूसरी पेटी जो है लप्सियस पर्वत से आरंभ होकर भूमध्य सागर जो है कैलेशियस, हिमालय प्रदेश तथा इंडोनेशिया तक फैली हुई है। इस पेटी में संसार के लगभग 21% भूकंप आते ही रहते हैं। शेष 11% भूकंप संसार के शेष भागों में आते हैं। यहाँ पर ये मानचित्र से आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रमुख भूमक जो है भूकंप क्षेत्र कहाँ कहाँ है। आप देख सकते हो कि भारत के भी कई क्षेत्र जो है भूकंप के अंतर्गत ही आता है। उत्तरी क्षेत्र तो पूरी तरह से भूकंप के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। कई जगह जो है भूकंप का जो है केंद्र बिंदु है और ये कई जगहों पे आती है। प्रशांत सागर के आसपास भी आती है, हिंद महासागर के आसपास भी आती है, अंटार्कटिका सागर के पास कुछ कम है, लेकिन ये प्रमुख जो क्षेत्र जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि भूकंप का जो है केंद्र कहाँ हो सकते हैं और कहाँ नहीं हो सकते हैं। ये मानचित्र भी बहुत कुछ बता रही है, भूकंप की हर एक क्षेत्र को दर्शा रही है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो था ख़त्म हो जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण था। ठीक है, और ये आपके लिए समझने के लिए, सोचने के लिए भी काफ़ी पर्याप्त थी। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको जो है काफ़ी इससे नॉलेज मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना आपने। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर
आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।